Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel M for Mathematics. As all of you know that we have started the series of complex analysis by Dennis G. Zill and Patrick D. Shanhan. So in previous lecture we have discussed the topic of distance. Now in this lecture we are going to solve example 2, set of points in the complex plane. So we have given the statement, describe the set of points z in the complex plane that satisfies z mod is equal to z minus iota mod. So we have to find such point z in द कॉम्प्लेक्स प्लेन जो कि सेटिस्फाई करता है दिस इक्वेशन z मोड को और z माइनस अयोटा को, z माइनस अयोटा मोड को. तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो वी यूज दिस फिगर एज वेल. आई हैव सॉल्व्ड इट ऑन द रजिस्टर फॉर फर्दर एंड मोर क्लैरिफिकेशन. So now we have to first see that basically z is a complex number, so z is equal to x plus iota y, and mod of z is square root of x square plus y square. From previous video I have proved that how mod of z is equal to square root of x square plus y square. So now we have to show that these two distances are equal. Then from this equality showing or from proving this we can get the point. Okay, so as we know that when we are talking about mode of z, mode of anything, so this means that the distance mode is, obviously we are talking about distance, so mode of z is distance of the point z, this complex number x plus iota y from the origin. So obviously, and so I'm just clarifying this statement more. So z mode is distance from the point z to the origin, or I'm just writing z mode, and distance from z to the point iota is basically z minus iota. So right there, when we are talking about the point of z, so it is obviously z minus 0 when I am talking about this z mode. So z mode, the point of these are z minus 0 plus iota 0, and when I am talking about the point z minus iota, so obviously the point is z minus 0 plus iota. Obviously right there imaginary is 1. So these are the point. One point is 0 0 distance from the origin, and another point is 0 1. So basically distance from a region and distance from the point 0 1 here. So now we know from equation 1, as equation 1 is right here, this is equation 1. We know that z mod is equal to square root of x square plus y square. So we have just to replace this z mod by square root of x square plus y square. And now if we see that this z minus iota, basically we have shown that z is complex number, any of the complex number, so it is z is equal to x plus iota y. So right there we replace this z by x plus iota y, and this minus iota is as it is. So let me explain in order as well. So यहाँ पर हमारे पास जो x है, यहाँ x प्लस अयोटा वाई आ गया और ये माइनस अयोटा ऐसे ही रहा. अब ये हमने क्या किया, इमेजिनरी को सेपरेट कर लिया और रियल पार्ट जो है उसको सेपरेट कर लिया. तो हमारे पास रियल जो था वो x था एंड इमेजिनरी अयोटा वाले होते हैं. तो यहाँ पर अयोटा वाई और माइनस अयोटा अलग किया. अब हमने अयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, y माइनस 1. सो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉइंट क्या होगा, हमारे पास यहाँ पॉइंट होगा x और
जो एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो y-1 होगा। सो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो x और y-1 का हो गया। सो हमें पता है कि हम x और y का स्केयर लेते हैं। अब हमारे पास लेट से जो x और y दो पॉइंट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है तो हम x स्केयर प्लस y स्केयर कर लेते हैं। तो इसमें भी हमने इसी तरह किया कि हमने फर्स्ट पॉइंट का मॉड्यूलस जो एक्स एक्सिस पे था उसका स्केयर लिया, प्लस जो वाई एक्सिस पे था। इसी तरह यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे था उसका स्केयर लिया, जो वाई एक्सिस पे था उसका स्केयर लिया। तो अब हमने जो है सिंपली इसको इसी तरह लेके चलना है, इसको हमने फर्दर सोल्व करना है। तो हमें पता है कि एक्स स्केयर, अब यहाँ स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया, हमें पता है कि y-1 होल स्केयर। सो वाई स्केयर हमने फॉर्मूला कौन सा ओपन किया, हमने फॉर्मूला ओपन किया है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये हो गया जी वाई स्केयर। अब यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस, तो ये हो जाएगा -2a, राइट देयर a इज y एंड b इज 1 प्लस 1। सो ये हो जाएगा वाई स्केयर -2y प्लस 1। अब ये देखें, वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2y प्लस 1, हमने दोनों तरफ स्केयर किया। तो यहाँ हमें पता है स्केयर रूट की वैल्यू जो है, दिस स्केयर रूट ये जो होता है ये बेसिकली 1/2, इसकी पावर में 1/2 आता है। तो अब अगर हमने स्केयर लिया तो ये 1/2 जो है वो कैंसिल हो गया बेसिकली स्केयर से। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x प्लस वाई स्केयर एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2y प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर यहाँ पर जो है वो ऐड हो रहा था, इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेसिकली हम कैंसलेशन लॉ अप्लाई करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेसिकली एक्स स्केयर और वाई स्केयर से, और इस तरफ भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, -2y प्लस 1। अब हमारे पास हमें y की वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू ही निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये 2y इस तरफ को आ गया एंड 1, या फिर हम इस 1 को इस तरफ को ले आएंगे कैंसलेशन लॉ से। ये हमने डिवाइडेड बाय -1 किया, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय -1 किया। बेसिकली हम कहते हैं ये इससे कैंसिल हो गया। जब हम इधर अगर मैं इसको लिखती हूँ तो हम इसको कैसे कहते हैं, हम कहते हैं -2y इज इक्वल टू -1, ये इससे कैंसिल हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर हम हमेशा नीचे डिवाइडेड बाय -1 कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यूँ कैंसिल होता है। सो ये बाय कैंसलेशन लॉ होता है। तो 2y इज इक्वल टू 1, ये हमारी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि हम कहते हैं कि ये माइनस का y है तो ये माइनस का 2 इधर, तो इधर ये कैंसिल ऐसे नहीं होता। ओके, सो अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा। ये भी इस तरह नहीं होता, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं दोनों तरफ। सो ये 2 से कैंसिल हो जाता है और y इज इक्वल टू 1/2। दिस इज ऑल अबाउट कैंसलेशन लॉ। जो मैथ्स में होता है वो कैंसलेशन लॉ होता है। ये हमारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल गेट कि हम कैसे जो है ना वो कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं, हम शिफ्ट नहीं कर रहे होते कभी भी। तो हम ये कहते हैं कि y की वैल्यू 1/2 है ऑफ, सो फॉर आर्बिट्रेरी, किसी भी x के लिए, आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई भी x, किसी भी x के लिए हमारे पास y की वैल्यू हमेशा 1/2 होगी। तो अब वो कहते हैं कि डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने जो सेट ऑफ पॉइंट डिस्क्राइब करना है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्क्राइब करना है। तो हमने कहा कि x जो है वो तो हमारे पास आर्बिट्रेरी है और y की वैल्यू 1/2 है, और कॉम्प्लेक्स में हमेशा z जैसे हमारे पास है x प्लस आयोटा y। सो x तो आर्बिट्रेरी है, x तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा भी ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू 1/2। तो हमने ये पुट की x प्लस 1/2। तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिल गया x प्लस 1/2 जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली। तो आप ये पुट करके देख भी सकते हैं कि कैसे हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम लोग जी चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये यहाँ इक्वेशन सॉल्व होगी, और हम यहाँ पे बेसिकली ये जो रेड लाइन है हमारे पास,
सो y इज इक्वल टू 1/2 इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेड लाइन। अब यहाँ पे 1/2 जो हमारे पास इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0.5 के। अब यहाँ पर ये जो y इज इक्वल टू 1/2 है, ये रेड लाइन जो है ये शो कर रही है y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 की इक्वेशन को। सो यहाँ पर हमारे पास ये z माइनस 0 ओरिजिन से यहाँ पर डिस्टेंस, एंड दिस इज z माइनस आयोटा। सो दिस इज द पॉइंट जो हमारे पास था, जो सेटिस्फाई कर रहा था, एंड x प्लस 1/2 आयोटा. So now we are moving toward the inequalities, the very next topic. Okay. So now inequalities. In the remark at the end of the last section, we pointed out that no order relation can be defined on the system of complex number. अब ये कह रहे हैं कि पीछे जो रिमार्क था हमारे पास, एंड वाला रिमार्क, उसमें हमने बताया कि कोई भी ऑर्डर रिलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑन द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम पे कोई भी ऑर्डर रिलेशन जो है वो डिफाइंड नहीं होता. हम एक दफ़ा दोबारा, मैंने वैसे तो एक्सप्लेन किया था, बट हम एक दफ़ा दोबारा पिछला रिमार्क देख लेते हैं. अब यहाँ देखें, हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस में बहुत सारी जो हैं वो सेम होती हैं प्रॉपर्टीज़, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर इन अ रियल नंबर सिस्टम डज नॉट कैरी ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट था कि ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे छोटा है, क्योंकि रियल नंबर्स में तो हमारे पास एक प्रॉपर एक नंबर लाइन होती है. अगर मैं यहाँ हमारे पास रियल नंबर में क्या होता है जी, एक प्रॉपर नंबर लाइन होती है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ से -1 -2, एंड इसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन्हीं नंबर्स में इंटीजर्स यहीं पे हमारे पास हैं, तो होल नंबर. तो अब बेसिकली इसमें हमारे पास ऑब्वियसली पता चल रहा है ऑर्डर का कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया. लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं. हम एक बेसिकली लाइन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, 1D, 1 डायमेंशनल होती है. अब यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन है वो हमारे पास एक्स, ये सिर्फ एक्स एक्सिस है. लाइन के लिए सिर्फ एक एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, जबकि पॉइंट जो है वो हमारे पास उसमें प्लेन जो है उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों होते हैं, तो ये 2D होता है. तो इसमें हमारे पास हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पॉइंट बड़ा है, कौन सा पॉइंट छोटा है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ही नहीं, प्लेन में ऑर्डर नहीं होता. तो इस वजह से इसमें ऑर्डर रिलेशन एंड इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती. अभी तो सिर्फ मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ, मैं आपको ऑर्डर रिलेशन अभी एक्सप्लेन करती हूँ. अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास Z1 है ये लेस देन होगा Z2 से, या फिर Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1, Z2 जो है वो बड़ा होता है Z1 से. तो इस तरह की किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होता सी में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में. हाँ, अगर हम कहें Z1 इज इक्वल टू A Z2, अब ये जो A है ये अनलेस कोई भी रियल नंबर इन्वॉल्व हो रहा है. अब ये जो A है ये एक रियल नंबर है, तो क्योंकि अब इसमें एक रियल नंबर इन्वॉल्व हो गया, तो हाँ अब हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है इससे, क्योंकि एक रियल नंबर जो है यहाँ जो है वो नंबर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है, एक रियल नंबर आ जाता है, तो उसकी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं, हम ऑर्डर एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट जब तक रियल नंबर नहीं इन्वॉल्व होता तब तक हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं पता चलेगा कि वो बड़ा है या छोटा है. अब ऑर्डर रिलेशन, अब देखें बेसिकली यहाँ पे
वहाँ ऑर्डर की बात हुई, यहाँ पे बात हुई है नो ऑर्डर रिलेशन कैन बी डिफाइन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स। सो अब बात यहाँ पर हुई है ऑर्डर रिलेशन की। तो ऑर्डर रिलेशन क्या है? बेसिकली ऑर्डर रिलेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन है जो कि यूज़ होता है एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए। तो अब ऑर्डर रिलेशन की बात हुई कि नो ऑर्डर रिलेशन is basically exist or no such type of thing is defined on the complex number system. So अब यहाँ पर बात हो रही है ऑर्डर रिलेशन की। ऑर्डर रिलेशन जो है वो एक ऐसा बाइनरी रिलेशन होता है जो कि एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास ऑर्डर रिलेशन की टाइप्स जो हैं वो पहली टाइप है पार्शियल ऑर्डर। जब हम बात करते हैं पार्शियल ऑर्डर की तो हमारे पास बेसिकली इसमें 3 टाइप्स के ऑर्डर आ जाते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट जो होता है वो अपने आप से ही रिलेटेड होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्सिव की जब भी बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं? रिफ्लेक्शन की, कि जो हर एलिमेंट है वो अपना रिफ्लेक्शन होता है, वो सेम ही होता है। जैसे ए लेस देन इक्वल टू ए। अब वहाँ पे हमने यही बात की थी कि इसमें हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन कोई भी ऑर्डर नहीं एग्जिस्ट करता होगा बड़ा छोटे का। तो यही बात हो रही है कि हम यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू ए भी कर सकते थे, बट हमने ए लेस देन इक्वल टू ए इस तरह शो करवाया या ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए शो करवाया कि हमारे पास ये चीज़ होती है, इनइक्वालिटी भी होती है। अब एंटी सिमेट्रिक बेसिकली होती है अगर हमारे पास ए लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू ए है तो फिर ए इज इक्वल टू बी होगा। अगर ये ए लेस देन इक्वल टू बी है तो बी लेस देन इक्वल टू ए भी होना चाहिए, और अगर ये चीज़ है तो ये भी होगी। देन आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव जो है बेसिकली ये इस केस में हम कहते हैं कि अगर a लेस देन इक्वल टू बी है, b लेस देन इक्वल टू सी है, देन a लेस देन इक्वल टू सी होगा। ओके। अब ऑब्वियसली अगर एक नंबर a है वो छोटा है b से और b जो है वो छोटा है c से, तो ऑब्वियसली जो है a वो जो होगा वो छोटा होगा c से। ये बेसिकली हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंगली भी हम कह सकते हैं कि ये कैसे इससे छोटा हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये आगे हमारे पास आता है टोटल और लीनियर ऑर्डर। ये एक ऐसा पार्शियल ऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली पार्शियल ऑर्डर में हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक ये 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। बट ये जो होता है पार्शियल ऑर्डर, इसमें एक और एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है, कोई भी कंपेयर, मतलब इसमें कंपैरिजन होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ये एक टोटल ऑर्डर है, एज 2 एलिमेंट्स आर डायरेक्टली कंपेरेबल। अब इसमें 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? कंपेरेबल हो जाते हैं, इसलिए ये क्या है? टोटल या फिर लीनियर ऑर्डर है। अब स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। अब इसमें हमारे पास लेस देन इक्वल टू यूज़ करने के बजाय स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट स्ट्रिक्टली रैंक दिया जाए, यूजुअली हम इसको लेस देन से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद है कॉची ऑर्डर और प्री ऑर्डर। ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होता है बट एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। ये सारे जो रिलेशन हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं ऑर्डर रिलेशन। अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना सिर्फ ऑर्डर जो है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ना सिर्फ ऑर्डर अनडिफाइंड है बल्कि इसमें क्या है जी, इसमें ऑर्डर रिलेशन, ऐसे जितने भी रिलेशन हैं ऑर्डर के वो भी अनडिफाइंड होते हैं। अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर्स अनडिफाइंड होते हैं, बट यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है हमारे पास, मोड।
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, बेसिकली पॉइंट गिवन। सो ये जो मोड होता है, इससे हम फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो कि प्लेन में 2D प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो we'll discuss this topic inshallah in the next lecture. Take good care of yourself. Feel free to ask any of the question. Allah Hafiz.